Well, in this video, we are going to study about the Doppler effect, right? So, in everyday experience, that the pitch of the whistle of a fast-moving train decrease as it recedes away. आपको बताया गया है कि ये फॉर एग्जांपल हम ट्रेन की जगह एक कार का डायग्राम बनाते हैं। यदि कार आपसे दूर जाएगी तो आपको जो इसके हॉर्न की आवाज़ है वो कम सुनाई देगी एंड यू आर स्टेशनरी ओवर हेयर एट दिस प्लेस, राइट? सो व्हेन वी अप्रोच ए स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कार जो है वो यहाँ स्टेशनरी है, आप कार की ओर मूव करते हैं तो क्या होता है, आपको आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई देती है। When we approach toward the stationary source of sound, the pitch of the sound heard appears to be higher than that of source. तो आपको जो आवाज़ है वो ज़्यादा सुनाई देती है। ऐसा भी हो सकता है एज द ऑब्जर्वर रिसीड्स अवे फ्रॉम द सोर्स, जैसे ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से परे की ओर जाता है, द ऑब्जर्व पिच बिकम द लोअर देन दैट ऑफ द सोर्स, तो आपको आवाज़ फिर धीमी सुनाई देने लगती है। दिस मोशन रिलेटेड फ्रीक्वेंसी चेंज इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ये जो मोशन रिलेटेड फ्रीक्वेंसी चेंज है, फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा या कम सुनाई देना, इसको हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। सो व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? Doppler effect is the phenomena of the change in apparent frequency when there is a relative motion between the source and observer. Okay, basically the Doppler effect is a wave phenomena, right? And it holds not only for the sound waves, those are longitudinal in nature, but it is also possible for the electromagnetic waves. These are transverse in nature. This means that Doppler effect is possible for both for the longitudinal as well as the transverse waves. However, here we are considering only the sound waves. तो हमारा जो यहाँ text रहेगा, this is what about the sound waves only. Okay, so we analyze the change in frequency under three different situations. हम यहाँ change in frequency को तीन different situations में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहली situation ऐसी होगी when your observer is stationary and the source is moving, means your car is moving and you are standing at one point, right? And you observe the change in frequency. The second stage is that when the observer is moving but the source is stationary. When your car is at rest, and you are moving toward the car. This is the second situation. And third one is when the both observer and the source are moving. So maybe the car is moving toward the right, observer is also moving toward the right, observer is moving toward the left, car is also moving toward the left, observer is moving toward the right and car is moving toward the left. Such cases are also possible, right? So now we will start with the first case when the observer is stationary but the source is moving. So our first case is, the case number one is, number one, when source is moving and observer is stationary. Right? So this is the first case for us to discuss about. और इसको आप बड़े आनंद से पढ़ेंगे, बहुत आसान आपको लगेगा। आई मीन इट विल बी enjoyable for you. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सब कुछ क्या होने वाला है। हम टेक्स्ट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर and this is the initial position of the source. So now here your observer is stationary. This means I can write now कि velocity of the observer is equal to 0 and Vs is the velocity of the source. So now initially L is the distance between the source and the observer, and this is source is producing the sound waves, and those are moving with certain velocity v. Okay, so and now Bs, as Bs is the velocity of the source, so here the observer or observer has a counter associated with it. जो ऑब्जर्वर है उसके पास एक काउंटर है, जो यहाँ से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आती हैं या ट्रांसवर्स वेव्स आती हैं। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ट्रांसवर्स इन नेचर होंगी, और यदि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो हम कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन की हम बात करेंगे। सो जब यहाँ ये जो काउंटर है वो एक क्रस्ट को कैलकुलेट करता है, इट कैलकुलेट वन क्रस्ट,
राइट। एक टाइम पीरियड के बाद जब अगला क्रस्ट आता है तो उसको वो कैलकुलेट करता है। ओके, सो अब आप यहाँ देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कि द फर्स्ट क्रस्ट कम्स टू द ऑब्जर्वर इज the time taken by the first crust to reach to the observer is, this is t1, this is equal to the distance. So time का जो फार्मूला होगा वो it is equal to distance upon velocity. ओके, सो अब आप यहाँ देखें कि जो डिस्टेंस है वो l है और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v. सो आई विल राइट इट हेयर, दिस इज t1 इज इक्वल टू l अपॉन v एंड मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद क्या होने वाला है कि एक का टाइम इंटरवल में, इन वन टाइम इंटरवल t0, ये t0 टाइम इंटरवल के लिए ये चलेगा और उसके बाद जो सोर्स है वो अपना सेकंड जो पल्स है वो जनरेट करेगा और वो जो इतने टाइम में जो सोर्स है वो कितने दूर चला जाएगा, इट विल ट्रेवल v(s)t0 डिस्टेंस, राइट. सो जो t2 जो सेकंड टाइम होगा t2 वो क्या होगा, वो होगा पहले तो जो ये वाला पार्ट होगा कि t0 टाइम के लिए वो ट्रेवल करेगा. ओके, एक तो ये टाइम हो जाएगा. फिर इस पॉइंट से एक जो पल्स वो जनरेट होगी वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगी, दिस विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ l प्लस v(s)t0, राइट. सो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज डिस्टेंस इज l प्लस v(s)t0 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड. दिस इज व्हाट द इक्वेशन नंबर 2 इज. ओके, सो अब आप नेक्स्ट केस में चलें. जब t3 होगा तो t3 के केस में क्या होगा, t3 के केस में आपका जो सोर्स है वो यहां पहुंच गया होगा. सोर्स विल बी एट दिस पॉइंट. तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इसको समझना है आपने, पहले वो एक टाइम इंटरवल के लिए मूव करेगा. तो जो t3 के लिए टाइम इंटरवल यहां क्या हो जाएगा, 2t0 हो जाएगा. सी हियर दिस t0 एंड दिस t0, और वो अब इसमें एक डिस्टेंस और ऐड हो जाएगा, दिस इज फर्दर v(s)t0. तो ये आपके पास डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज l प्लस ओरिजिनल डिस्टेंस जो आपके पास ये है प्लस 2 टाइम v(s)t0 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो t3 क्या हो जाएगा इन टोटलिटी, दिस इज यस दिस इज 2t0 प्लस l प्लस 2 v(s)t0 upon v. So it's once again equation number 3 because there is no difference at all. ये दोनों equations एक ही जैसे हैं, right? So now similarly जो t4 होगा वो क्या होना है, जो t4 होगा वो क्या होगा, वो एक टाइम इंटरवल और मूव करेगा. So I can write it in 3t0 plus l plus 3 टाइम v(s)t0 upon velocity of sound. This is equation number 4, right. Similarly ऐसे हम लिख सकते हैं अब, similarly t sum n plus 1 is equal to n टाइम t0, ये n इंटरवल्स हो जाएंगे, प्लस l प्लस n टाइम v(s)t0 अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अब इन टाइम इंटरवल्स में आपको हमें निकालना है कि जो टोटल टाइम इंटरवल्स हैं जिसके बीच में वो क्रस्ट को काउंट करता है, जो ऑब्जर्वर के ऊपर के पास एक काउंटर है जो क्रस्ट को काउंट करता है इन n टाइम इंटरवल्स. तो वो टोटल टाइम इंटरवल्स कितने होते हैं उसको हम लिख देंगे n टाइम t इज इक्वल टू t टाइम n प्लस 1 में से आप फर्स्ट इंटरवल घटा देंगे. क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पहुँचते हैं तब आपका जो काउंटर है वो फर्स्ट जो साउंड है उसको रिसीव करता है. ओके, हम यहाँ लिख देंगे n टाइम t इज इक्वल टू tn प्लस 1 फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड यू विल टेक दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 एंड 1. सो इस इक्वेशन नंबर 5 को आप पुट कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास nt0 प्लस l अपॉन v प्लस n v(s)t0 अपॉन v. इस पार्ट को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, इस पार्ट को मैंने ऐसे ब्रेक करके
ऐसे लिख दिया, और इसमें से आप L अपॉन वी फर्स्ट इक्वेशन घटा देंगे, L अपॉन वी से L अपॉन वी कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद एन टी इज इक्वल टू एन टी ज़ीरो प्लस एन वी एस टी ज़ीरो upon v. Okay, so from here we can take n t 0 outside. This is n t is equal to n t 0. This is 1 plus vs upon v. So where bs is the velocity of the source, this is the velocity of source. ये source की velocity है. Okay, so आप n के साथ n कैंसिल कर देंगे, we are left with t is equal to t0 and this is 1 plus vs upon v. Okay, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा t is equal to t0, this is LCM v आ जाएगा, this is v plus velocity of the source, right? अब हमें निकालना है कि आवाज़ जो है वो काउंटर जो रिसीव करता है, ऑब्जर्वर जो रिसीव करता है, वो कितनी होगी। तो हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करते हैं, हम इसका इन्वर्स लेते हैं, तो आप इसको लिख देंगे 1/t इज इक्वल टू 1/t0, और ये आपके पास हो जाएगा v अपॉन v प्लस वी एस, राइट। सो 1/t is the frequency and 1/t is the natural frequency generated by the source at that time. This is the frequency received by the observer and this is the original frequency generated by the source, and this is v upon v plus velocity of the source. So this is very important. अब आपको यहाँ से ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमेरेटर से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वर्स आवाज़ सुनेगा वो सोर्स की आवाज़ से कम होगी, वो धीमी आवाज़ सुनेगा। और ऐसा केस भी हो सकता है अब, बिकॉज यू नो दैट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और यदि मान लो एक सेकेंड केस हो सकता है कि जब आपका ऑब्जर्वर जो है वो इट विल मूव टुवर्ड्स द व्हेन योर सोर्स इज विल मूव टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ऐसा कैसा हो सकता है, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक केस ऐसा हो सकता है, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर की ओर मूव करता है, तो आप क्या करेंगे, जो वी एस है उसको आप रिप्लेस कर देंगे माइनस वी एस से। सो नाउ हियर यू कैन सी न्यू इज इक्वल टू न्यू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी 6। तो आपके पास हो जाएगा v अपॉन v माइनस वी एस हो जाएगा। नाउ हियर इन दिस केस जो डिनोमिनेटर है अब वो न्यूमेरेटर से छोटा हो जाएगा। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट न्यू इज ग्रेटर देन न्यू ज़ीरो। इसका मतलब जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की ओर आएगा तो जो ऑब्जर्वर है वो ज़्यादा आवाज़ सुनेगा। दिस इज सिंपली, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड केस में। नाउ द सेकेंड केस इज observer is moving and source is stationary. So we'll go for the next page. When the observer is moving and source is stationary. So here we'll add new page. When observer is moving, the second case is when observer is moving and source is stationary. When observer is moving and source is stationary. Now here in this case what we will do, हमें जो डायग्राम है वो बनाना होगा। हमारे पास ये रहा source that is stationary and this is the position of the observer. हम यहाँ लिख देते हैं ये रहा आपका source और ये रहा आपका ऑब्जर्वर। नाउ हियर ऑब्जर्वर इज मूविंग, सो विल जस्ट मार्क दैट VO is the velocity of the observer and VS that is equal to 0, this is the velocity of the source. So source is producing the sound waves and the sound is having some velocity B. So initial जो distance है दोनों के बीच का
ये रहेगा L, जैसे हमने पहले किया था डायग्राम सारा उसी तरीके का बनेगा। और इसमें सबसे पहले क्या होने वाला है उसकी हम बातचीत करते हैं। सो नंबर 1, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से सोर्स जो है वो अपना फर्स्ट साउंड जो है प्रोड्यूस करेगा, उसको ऑब्जर्वर तक पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा उसको हम लेते हैं इसमें T1। पहले हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आएगा जो फर्स्ट साउंड आएगी वो आएगी T1। उसमें क्या होगा, देखिए जो ये T1 क्या होगा, दिस इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इसकी रेशियो होगी। अब आप यहाँ देखें डिस्टेंस तो L ही है, ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस तो L ही है, बट इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है अब वो है b प्लस v0। तो रिलेटिव वेलोसिटी विल एग्जिस्ट बिटवीन द, बिकॉज जो साउंड के वेलोसिटी और ऑब्जर्वर का जो मोशन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी मैं यहाँ लिख दूंगा v प्लस v0, इसको v0 से हम मार्क कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी द T1। व्हाट विल हैपन देन, नाउ योर ऑब्जर्वर विल मूव ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा, इसको हम नए कलर के साथ मार्क कर देते हैं कि एक टाइम इंटरवल में आपका जो ऑब्जर्वर है अब वो कुछ मूव कर जाएगा और वो डिस्टेंस कवर करेगा v0 t0, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या होगा, जो रिमेनिंग डिस्टेंस रह जाएगा वो रह जाएगा l माइनस b0 t0, ये रिमेनिंग डिस्टेंस रह जाएगा एक टाइम इंटरवल में। तो जो t2 होगा वो क्या होना चाहिए, जो देखिए जो t2 होगा, पहले तो एक टाइम इंटरवल इसमें वो सिर्फ मूव करेगा, प्लस अब इतना मूव करने के बाद जो यहाँ से जो सेकंड क्रस्ट जनरेट होगा तो उसका जो काउंटर इसको चेक करेगा वो आएगा, उसके लिए जो डिस्टेंस घट चुका है वो है L माइनस v0 t0, इट वेरी 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 इंटरेस्टिंग आर्टिकल, अपॉन जो वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द साउंड एंड द ऑब्जर्वर। सो दिस विल बी द टाइम इंटरवल जब दूसरा क्रस्ट यहाँ पहुँचेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। इसी के साथ हम T3 भी निकालते हैं, आपको आसानी होगी। T3 इट इज इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, दो टाइम इंटरवल तो वो चलेगा, ये देखिए हम यहाँ डायग्राम में आपको बताने की कोशिश करते हैं, वो दो टाइम इंटरवल के लिए वो मूव करेगा। सो दिस इज फर्दर, वो कितना मूव करेगा b0 t0। अब वो एक टाइम इंटरवल के लिए चलेगा और प्लस अब उसका जो डिस्टेंस कितना शॉर्ट हो गया होगा 2b0 t0। अब ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है L माइनस 2b0 t0 है, दिस रिमेनिंग डिस्टेंस इज L माइनस 2b0 t0। ओके, सो इसको कवर करेगा और जो ये डिस्टेंस आ जाएगा और वेलोसिटी आ जाएगी v प्लस b0। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी between the velocity of sound and the observer. So I will mark this as equation number 3. Okay, so it will become now T3 is equal to 2T0 plus L minus 2 B0 T0 upon V plus V0. Okay, this is now equation number 4, right? Similarly, इसी तरीके से ऐसे हो जाएगा पिछले स्टेप की तरह। t कोई n प्लस 1 क्या होगा, तो वो होगा n टाइम t0 प्लस l माइनस n टाइम b0 t0 अपॉन v प्लस v0। दिस इज सम इक्वेशन नंबर 5। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमें ये चेक करना है कि कितने जो इंटरवल जो है वो काउंट करेगा। So how many interval will be counted? So this is what I am going to write. The time interval between the arrival of the first and n plus 1th crust का उसका टाइम इंटरवल कितना है, पहले और n प्लस 1th टाइम इंटरवल के बीच का टाइम कितना है, दिस इज nt। तो इस टाइम इंटरवल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tn प्लस 1 में से t1 को घटा देंगे। ओके, सो आपके पास हो जाएगा, ये हो गए टोटल इंटरवल जो काउंट किए एक एक करके, और इसमें हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन नंबर 5 को लिख दीजिए, n t0
प्लस, अब इसको तोड़ के लिखते हैं, L अपॉन बी प्लस बी ज़ीरो माइनस N बी ज़ीरो टी ज़ीरो अपॉन V प्लस वी ज़ीरो में से आप फर्स्ट इक्वेशन को घटा दीजिए, L अपॉन V प्लस वी ज़ीरो। ओके, सो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद N टाइम T, दिस इज N टी ज़ीरो माइनस N वी ज़ीरो टी ज़ीरो अपॉन V प्लस वी ज़ीरो। ओके, अब यहाँ से आप एन टी ज़ीरो कॉमन ले सकते हो, एन टी इज इक्वल टू एन टी ज़ीरो, दिस इज 1 माइनस वी ज़ीरो अपॉन वी प्लस वी ज़ीरो। ओके, सो एन के साथ एन कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद नाउ अब हमारे पास रह जाएगा, अलग कलर हम चूज़ कर लेते हैं, हमारे पास रह जाएगा t इज इक्वल टू टी ज़ीरो एंड दिस इज 1 माइनस वी ज़ीरो अपॉन वी प्लस वी ज़ीरो। ओके, अब हम आगे इसका एलसीएम लेते हैं, t इज इक्वल टू टी ज़ीरो, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आएगा v प्लस बी ज़ीरो, तो यहाँ आ जाएगा v प्लस बी ज़ीरो माइनस वी ज़ीरो, बी ज़ीरो से बी ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा and you are left with t is equal to t0 and this is v upon v plus v0। अब हमने तो ये देखना है कि आवाज़ कितनी सुनाई देती है। यदि आपका ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी सोर्स की ओर मूव करता है तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी, हम ये मैथमेटिक्स कर रहे हैं। इसको हम इनको इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो आई कैन राइट इस 1/t इज इक्वल टू 1/t0 और यहाँ आपके पास आ जाएगा b प्लस वी ज़ीरो अपॉन वी। सो ये हो जाएगा वो आवाज़ जो आपका ऑब्जर्वर सुनेगा, इसको हम न्यू लिख देते हैं, और ये वो आवाज़ जो आपका सोर्स पैदा करेगा, इसको न्यू ज़ीरो लिख देते हैं एंड यू आर लेफ्ट विद b प्लस बी ज़ीरो अपॉन वी। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि हियर जो v प्लस वी ज़ीरो है ना, v प्लस वी ज़ीरो जो है वो v से बड़ा है, इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब जो सुनने वाली आवाज़ होगी वो सोर्स की आवाज़ से ज़्यादा होगी। यदि आपका ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की ओर मूव करता है तो वो ज़्यादा आवाज़ सुनेगा। और एक दूसरा केस, व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव अवे from stationary source, it will move away from the stationary source। यदि वो स्टेशनरी सोर्स से अवे मूव कर दे तो हम क्या करेंगे, हम उसकी जो वेलोसिटी है बी ओ को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस वी ज़ीरो से। ओके, सो देन यूज इन इक्वेशन नंबर 6, बाय यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 6 हम इक्वेशन नंबर 6 में इसको यूज़ कर देते हैं। आपके पास आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू न्यू ज़ीरो एंड दिस इज v माइनस वी ज़ीरो अपॉन v। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि जब ऑब्जर्वर जो है यदि तो वो स्टेशनरी सोर्स की ओर मूव करेगा तो वो ज़्यादा आवाज़ सुनेगा, और यहाँ आप देखिए हेयर v माइनस बी ज़ीरो इज़ लेस देन v। व्हाट डज दिस मीन, ये कम है, यदि ये कम है इसका मतलब क्या होगा, न्यू इज़ लेस देन न्यू ज़ीरो, इसमें वो कम आवाज़ सुनेगा। when it will go away from the stationary source then it will hear the less frequency of sound as it is produced by the stationary source। okay, हम अपने डिस्कशन को तीसरे केस की ओर लेकर चलते हैं जिसमें हम देखेंगे when both source and observer are moving। it's so interesting and simple। when third case is when both source and observer moving, both source and observer are moving।
इसमें दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर जो हैं वो दोनों ही मूव कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन का मैथमेटिक्स हम कैसे करेंगे, बहुत साधारण आपको लगेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपके पास जो ऑब्जर्वर है, आप देखिए यहाँ इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है इसको O1 से दिखाया गया है, एनसीईआरटी का डायग्राम में, और ये इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है। V0 इज़ द ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, और ये S1 जो है उसकी जो फर्स्ट लोकेशन है एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये जो BS है ये तो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स है। ओके, ओरिजिनली यदि हम बात करें तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो L, राइट। सो इसमें क्या होगा कि जब पहले केस में जब यहाँ से सोर्स जो है वो अपनी एक फर्स्ट साउंड क्रिएट करेगा, हमने शुरू में बात किया था कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो इट इज़ एसोसिएटेड विद ए काउंटर, उसके पास एक काउंटर है जो क्रस्ट को काउंट करता रहता है। यहाँ से जो आवाज़ ऐसे करके एक जनरेट होगी, it will produce a sound like that, right? So it will reach to the observer, and now the counter on the observer will count the crust, right? अब क्या होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद अगले की बात जो बाद में होगी। सबसे पहले हम देखते हैं T1 क्या होगा। इस केस में जो T1 क्या होगा, जो T1 विल बी, इसमें T1 क्या होगा, जो T1 होगा तो ओरिजिनल ये तो वही फार्मूला लगेगा, सबसे पहले डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये तो चेंज नहीं होगा ना, टाइम का तो फार्मूला यही रहता है। तो अब दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस L ही है, और जो वेलोसिटी क्या है कि देखिए ऑब्जर्वर जो है सोर्स की ओर जा रहा है, और जो सोर्स की जो साउंड है वो तो ऑब्जर्वर की ओर ही होगी ना। सोर्स जब कभी कोई आवाज़ निकालता है तो वो सारी दिशाओं में जाता है, तो हम काउंट कौन सा करेंगे, जो ऑब्जर्वर की ओर है। तो हमें इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द साउंड इज दिस इज V प्लस V0, सो दैट विल काउंट ओवर हेयर। तो ये आपके पास आ जाएगी V प्लस V0, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द साउंड एंड द ऑब्जर्वर। सो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देते हैं, जैसे हम हर बार करते चले आ रहे हैं। अब जो T2 होगा, T2 में आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले तो सिंपली आप ये रखिए, पहले तो वो एक टाइम इंटरवल के लिए चलेगा आगे, खिसकेगा आगे, तो आपका जो ऑब्जर्वर है वो इतने दूर आ जाएगा, ऑब्जर्वर जो है ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके, अब ये डिस्टेंस कवर करने से क्या होगा, L जो है वो इतना डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, पर सोर्स भी मूव करेगा, जो सोर्स मूव करेगा वो आगे की ओर खिसक जाएगा। अब ऑब्जर्वर भी राइट की ओर खिसका है तो सोर्स भी राइट की ओर खिसका है। अब जो सोर्स का मोशन है वो लेंथ को बढ़ा देगा, जो ऑब्जर्वर का मोशन है वो टोटल लेंथ को घटा देगा। तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, प्लस ये आपके पास है ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जब सोर्स मूव करेगा परे की ओर, एक मिनट, जब सोर्स मूव करेगा तो ये लेंथ बढ़ जाएगी, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा तो ये लेंथ घट जाएगी। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द साउंड एंड द ऑब्जर्वर। दिस इज सो सिंपल टू डू इट। ओके, अब जो T3 होने वाला है उसमें क्या होगा, तो सबसे पहले दोनों ही मूव करेंगे। T3 के लिए ऑब्जर्वर जो है वो कुछ यहाँ आ जाएगा, और जो सोर्स है वो कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। सो इसमें ये क्या करेगा, ये B0 T0 और आगे खिसक जाएगा, और ये BS T0 और आगे खिसक जाएगा। अब आप देख लीजिए ज़रा लेंथ क्या हो जाती है, तो इस फर्स्ट T0 में एक T0 और जुड़ जाएगा, प्लस L प्लस 2 टाइम VS माइनस B0, और ये जो T0 है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ये जो VS T0 है ये भी डबल हो जाएगा, और B0 T0 है ये भी डबल हो जाएगा, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, और डिवाइडेड बाय V प्लस V0 हो जाएगा। ओके, तो हम इसको इक्वेशन का नंबर नहीं देंगे, अभी हमारी फाइनल इक्वेशन यहाँ बनेगी, T3 इज इक्वल टू 2T0 प्लस L प्लस 2 इंटू VS माइनस V0 इंटू T0 डिवाइडेड बाई V प्लस V0। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3।
तो सिमिलरली हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास जो Tn+1 क्या होने वाला होगा, Tn+1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यदि 3 है तो यहाँ 2 है, यदि n+1 यहाँ होगा तो यहाँ n होगा, तो इसको हम लिखेंगे Nt0 प्लस L प्लस n, दिस इज Vs माइनस V0 एन T0 डिवाइडेड बाय V प्लस V0. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ हम क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो एक टोटल जो टाइम इंटरवल है, इन ए टाइम इंटरवल Tn+1 माइनस Tn, जो कितने जो क्रस्ट है वो काउंट हो जाते हैं, हम उसकी बात करेंगे. तो ये हमारे पास हो जाएंगे क्रस्ट काउंटेड इन ए टाइम इंटरवल Nt इज इक्वल टू Tn+1 में से आप T1 को घटा देंगे. तो यहाँ हम लिखते हैं Nt जो होगा वो इक्वेशन नंबर जो 4 है वो इसकी आप हेल्प लेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 है इसकी आप हेल्प लेंगे. तो हम यहाँ लिख देंगे कि Nt0 प्लस L, इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, इस पार्ट को हम ब्रेक करके लिखेंगे L अपॉन V प्लस V0 प्लस N इंटू Vs माइनस B0 इंटू T0 अपॉन V प्लस V0 में से आप घटा देंगे L अपॉन V प्लस V0. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. वी आर लेफ्ट विद नाउ Nt इज इक्वल टू Nt0 एंड प्लस दिस इज Nt0 एंड Vs माइनस V0 अपॉन V प्लस V0. ओके, अब आप यहाँ से Nt0 कॉमन ले सकते हो. वी आर लेफ्ट विद Nt इज इक्वल टू N टाइम T0, दिस इज 1 प्लस Vs माइनस V0 अपॉन V प्लस V0. ओके, सो आपके पास है n के साथ n कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद T इज इक्वल टू T0. यहाँ एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, दिस इज V प्लस V0, तो ऊपर यहाँ आएगा V प्लस V0 प्लस Vs माइनस V0. ओके, सो B0 से B0 कैंसल, वी आर लेफ्ट विद नाउ T इज इक्वल टू T0, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा हमारे पास V प्लस Vs अपॉन V प्लस V0. ओके, सो नाउ आपको हमें तो निकालना है कि आवाज़ कितनी हमें सुनाई देगी, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं. यह आएगा 1 अपॉन T इज इक्वल टू 1 अपॉन T0 एंड दिस इज V प्लस V0 अपॉन V प्लस Vs. सो 1/T इज द फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी जो आपका ऑब्जर्वर सुनता है, और ये B0 न्यू 0 इज द फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय द सोर्स, एंड देन इट इज V प्लस V0 अपॉन V प्लस Vs. ओके, सो अब आप यहाँ अंदाज़ा लगा लें कि इट इज़ अ रिलेटिव मोशन. अब इसमें हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अभी आवाज़ कैसे सुनाई देगी. नाउ इफ़ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर, ये हमारे पास जो इक्वेशन होगी, यहाँ से जो रिज़ल्ट है वो सामने आ जाएगा. इसका इस्तेमाल करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर जो है वो कितनी आवाज़ सुनेगा, राइट. एंड इफ़ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर, इफ़ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग away from one another, यदि वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम VO को माइनस V0 से रिप्लेस कर देंगे, और जो Vs है उसको हम माइनस Vs से रिप्लेस कर देंगे. ओके, no, it is not like that. It is according to the situation. If not one another, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते.
हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि वो डायरेक्शन इसको यहीं रहने दें, वहाँ इस सिचुएशन के हिसाब से एज यू लाइक से इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे देन we will change v to minus v0 if the observer is moving away from the source. So then you can replace this v with v0 with minus v0. Okay, then your formula will change accordingly. So this is all about the three cases. And now I am just going to attempt one numerical problem कि इस फार्मूला को हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है. सो ये रही वो प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 15.7. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. इसको जो हमने टेक्स्ट पढ़ा इसको हम एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे तो इसको हम पढ़ने वाले हैं. तो हमारे पास है सवाल कुछ इस तरीके का कि ए रॉकेट इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड. एक रॉकेट है जो 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है. हम यहाँ एक रॉकेट जो है उसको बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक रॉकेट है. इट इज़ मूविंग इनिशियली विद ए स्पीड ऑफ इट्स अ वेलोसिटी ऑफ द सोर्स दैट इज़ 200 मीटर पर सेकेंड. इट इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड and toward the stationary, it is moving toward the stationary. Now this is moving toward the stationary target. ये जो टारगेट है यहाँ कोई मान लो कोई चट्टान है, यहाँ तक इसकी तरह वो मूव कर रहा है. So while moving it emits the waves of frequency 1000 hertz. तो जो हमारे पास गिवन पैरामीटर है न्यू ज़ीरो जो है वो है 1000 हर्ट्ज़. इतनी ध्वनि जो है वो पैदा कर रहा है. सम ऑफ द साउंड रीचिंग द टारगेट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक. यहाँ से जो साउंड यहाँ जाती है वो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक करती है. इट रिफ्लेक्ट बैक. ओके, इट रिफ्लेक्ट बैक टू द रॉकेट एज एन इको. सो कैलकुलेट आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट नंबर 1 आपको कैलकुलेट करना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड डिटेक्टेड बाय द टारगेट. The frequency of sound detected by target. आपका जो टारगेट है वो कितनी साउंड जो है वो रिसीव करता है. और दूसरे केस में पूछा गया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको डिटेक्टेड बाय द रॉकेट. जब ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी दोबारा फिर से जनरेट टकराने के बाद यहाँ जो रॉकेट में बैठा हुआ आदमी है वो उस फ्रीक्वेंसी को कितना रिसीव करता है. तो हमारे पास दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं. तो सबसे पहला केस हमारे पास ऐसा होगा. इस केस में क्या होगा, केस नंबर 1, इस केस में क्या होगा कि ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी. दिस इज द फर्स्ट केस. केस 1 में क्या है, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी. ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी. Okay, and source is moving toward the observer. Source is moving कहाँ, towards the observer. सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की ओर मूव कर रहा है. इसलिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, हमारा जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाएगा न्यू इंटू न्यू ज़ीरो. ये होता हमारे पास v अपॉन v प्लस वी एस. फर्स्ट केस में हमने किया था कब, when the source was moving away from the observer and observer was stationary. But here the source is moving towards the observer. So what we will do, we will replace vs with minus vs. तो आपका फार्मूला क्या बन जाना चाहिए, न्यू इज इक्वल टू न्यू ज़ीरो. दिस इज v वेलोसिटी ऑफ साउंड, v माइनस वी एस. सो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर गिवन टू अस. तो हम यहाँ लिख देंगे हमारे पास जो न्यू ज़ीरो है ये है 1000 हर्ट्ज़. ओके, और जो ये है v है दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज 330 अप्रॉक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड. एंड द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज दिस इज 200 मीटर पर सेकेंड. ओके, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है. यहाँ हम लिख दें 1000 and this is 330 upon 330
minus 200. Now we'll just solve it. You will have here 1000 into 330 over this is 130. ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 33,000 अपॉन 13. दिस इज नियरली इक्वल टू 2540. So this is nearly equal to 2540 हर्ट्ज. सो यहाँ जो स्टेशनरी जो टारगेट है ये इतनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा 2540. ओके, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसके लिए क्या होगा, अब ये फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. अब इसके लिए ये क्या हो जाएगा, फॉर द सेकंड पार्ट बी के लिए जो सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2540 हर्ट्ज. देखो ना, यहाँ रॉकेट जो पहले फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा था 1000 हर्ट्ज. ओके, तो यहाँ जो स्टेशनरी टारगेट है वो इसको सुन रहा था. जब यहाँ आवाज़ टकराई तो आवाज़ यहाँ टारगेट पर टकराने के बाद 2540 हर्ट्ज हो गई. ये आवाज़ अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद तो रॉकेट के ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगी इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स. अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सिचुएशन क्या है इस केस में, क्या है, अब आपके पास सोर्स इज एट रेस्ट. इन दिस केस source is at rest, source is at rest and observer is moving. इस केस में क्या है, observer is moving towards stationary सोर्स की ओर जो है वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है. ओके, तो हम यह कह सकते हैं कि जो स्टेशनरी सोर्स है तो हमें कह देंगे वी एस इज इक्वल टू 0, राइट. और फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, जो अपना हमारा प्रीवियस टेक्स्ट है उस वहाँ से हम उठा सकते हैं सीधा फार्मूला, न्यू इज इक्वल टू न्यू 0 एंड इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है ये आप देख सकते हैं पीछे इक्वेशंस में. तो यहाँ सब चीज़ें मुझे लगता है दी ही है. जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास है अब 2540 हर्ट्ज. ओके, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये 330 मीटर पर सेकेंड है. और जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर है ये, अब ऑब्जर्वर जो है ना वो रॉकेट है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो है 200 मीटर पर सेकेंड. सो नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू ओवर हियर. सो दिस इज न्यू इज इक्वल टू न्यू 0 इज 2540 into velocity of this rocket. Velocity of sound is 330 plus velocity of the rocket is 200 divided by velocity of sound. This is 330. Okay, बहुत मज़ेदार 2540 और ये पार्ट हो जाएगा आपके पास इनटू यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 530 और डिनोमिनेटर में आपके पास रह जाएंगे 330. इसके साथ एक कैंसिल हो गया. यदि आप नोमेरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 13 और 4620. ओके, डिवाइडेड बाय 33. और इसको आगे आप सॉल्व करेंगे. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इट इज़ 4079.39 which could be hertz, which could be written as apparent frequency is, this is 4080 hertz approximately. So this is the beautiful way to solve such problems, and I hope that you will solve the rest of the problems from the various books from the competitive examination or from the text of NCERT to enrich this text. So thank you very much.